Yesterday we have learned the basic concepts of a list. Today we will summarize the rest of concepts. Thereafter we will move to dictionary. Thank you. Yesterday I talked about lists, and I gave an idea regarding the list within list. Today we will start from nested list. Nested means a list within list. For example, suppose this L is equal to bracket 1, 2, 3. This is a list, and another list is suppose 4, 5. So this is an example of list within list. Hence we can say L is a nested list. As you can see, if I write L0, so we are getting 1, 2, 3. The first list. This is the first value at index 0, and at index 1 there is another list 4, 5. So this is a concept of list within list. And yesterday I explored this concept on the basis of string. Today I have used genuine list. So pay attention. Suppose I am writing L1 and 1. What we will get? We will get here 5. L1 means the list, this list. The second element of L, that is list 4, 5, and 1 means second element of the second element from the second list, that is 5. So we are getting 5 here. So list within list, we can make this nesting up to any level. There is no barrier, but we are confining our discussion up to 2 level only. So come to the next topic. We can compare two lists as well. So suppose one list is L, and define another list L1 like suppose 1, 2, 3, and then 5, this 4, 5. So L1 consists of 3 values. What happened? It should be placed here. This is in L1. There is first element a list, second element is an integer type value, and third is also a list. So that's the error. So if we compare L1 is less than L2, it's what happened? L and L1, sorry. L and L1, we have to compare L1. We are getting here not supported between instances of list and int. So it is very clear that if we want to compare the list must be of same dimension. As we see here, L1 consists of 2 elements. L consists of 2 elements, and L1 consists of 3 elements. And in between these 3 elements, there is one element is of integer type. So comparison is not possible at all. So what should do? We have to define like this. Suppose 1, 2. Now these are 2 lists, and what we have to do? L1. This is false because of how does it work? देखिए, the first element of L is this. First element of L is 1, 2, 3.
So 1 2 3 and 1 2 3 of L1 are equal, but second element of L is 4 5 and this is 1 2. So after qualifying first comparison, the control goes to next comparison. This is 4 5, hence it's giving false. So go through text for more examples. It is very clear. And now we are moving towards traversal of a list. As you know, a list may be traversed in the same fashion as a string. So you know very well. Suppose you have created a list L1. Already it is created, and if I want to traverse means visiting each element exactly once. So what is traversal here? For I in L1, if we write I in L1, give command print I, what's happening? It will print the content of L1. So it's printing first content and this is second content. So what's happening? In is an membership operator which evaluates true if values in list are better say values in a sequence. Because of ये जो इन ऑपरेटर है, दिस इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर, ये आपने ध्यान दिया होगा स्ट्रिंग के साथ भी काम करता है. इसका रोल क्या है? ये चेक करता है कि ये जो वैल्यू आई में आ रही है वो L1 में है कि नहीं. आई में कौन सी वैल्यू आ रही है? फर्स्ट टाइम में 1 2 3 आ रही है. तो 1 2 3 ऑफ कोर्स L1 में है, तो इट विल रिटर्न ट्रू एंड द आई इज बीइंग प्रिंटेड हियर. सिमिलरली सेकंड टाइम में आई में 1 2 आ रहा है, तो 1 2 प्रिंट. इसके बाद आई में कुछ नहीं आ रहा है, लूप से बाहर निकल जा रहा है कंट्रोल. तो ये हमारा लूप के बेसिस पे हमने मेंबरशिप ऑपरेटर को भी डिस्कस कर लिया. दो देयर आर टू मेंबरशिप ऑपरेटर्स, one is in and another is not in. So not in क्या करता है? It gives reverse answer whatever we retrieve by using in. So not in will give opposite answer to whatever we are getting in with in operator. So ठीक है. अब एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आते हैं, ज्वाइनिंग ऑफ लिस्ट. देखिए सपोज करिए कि L1 तो हमने देख लिया, ये है. एक L2 बना लीजिए आप. L2 बनाइए. L2 सपोज करिए एक लिस्ट है जिसमें दो वैल्यू है. सिंपल ले लेते हैं, ठीक है. अब अगर आप L1 प्लस L2 करिए तो देखिए क्या होता है. ये लिस्ट के एलिमेंट को सिंपली ऐड करके दे दिया. L1 के एलिमेंट जो थे और L2 के एलिमेंट से ऐड होके हमारे पास आ गए. अच्छा, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करें. सपोज करिए L2 तो हमारे पास है, L2 1 2 है, और सपोज करिए L3 इक्वल टू 4,5 है. 4,5, ठीक. सो अगर हम L2 प्लस L3 करके देखें तो हमारे पास क्या हो जा रहा है? ये सिंपली कॉन्कैटिनेट कर दे रहा है, जैसा कि आपने स्ट्रिंग में पढ़ा है. स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन होता है. जैसे आपका नाम है, किसी का नाम है अनुपम सिंह, तो अनुपम सिंह में अनुपम एक स्ट्रिंग है, सिंह एक दूसरा स्ट्रिंग है, तो ये दोनों कॉन्कैटिनेट हो जाते हैं और हमें अनुपम सिंह मिल जाता है. उसी तरीके से यहाँ पर दो स्ट्रिंग, दो यहाँ पे लिस्ट है L2 L3, ये दोनों कॉन्कैटिनेट हो गए. और L2 अगर हम L2 और L3 को एलिमेंट वाइज ऐड करना चाहें, मतलब कि हमें आंसर ऐसा मिले कि 1 + 4, L2 का पहला एलिमेंट 1, L3 का पहला एलिमेंट L3 का पहला एलिमेंट 4, तो 1 + 4, इसका आंसर हमें मिले 5,7. अगर ऐसा आंसर चाहिए तो इसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना पड़ेगा. फॉर लूप के थ्रू जाके हमें एलिमेंट वाइज एक्सेस करना पड़ेगा. इस चीज़ को हमारा numpy बहुत ही आसान कर देता है. और numpy में और भी बहुत सारे इसमें फंक्शंस हैं, तो हम जब numpy स्टडी करेंगे तो उसको बाद में देखेंगे. तो अभी इसको यहीं पे हम छोड़ रहे हैं टॉपिक को. तो ज्वाइनिंग हो गया. अब देखिए इसी तरीके से हम ज्वाइनिंग के लिए हमने प्लस ऑपरेटर का यूज किया. अगर हम स्टार का यूज करते हैं तो देखिए क्या होता है.
2 स्टार 2, रिजल्ट क्या आया 1 2 1 2। तो वो जो वैल्यू थी वो 2 बार आ गई, L2 में जो वैल्यू थी 1 2 वही 2 बार आ गई 1 2 1 2। अगर हम स्टार 3 कर दें तो 1 2 1 2 1 2 3 बार आ जाएगी। तो दिस इज रेप्लिकेशन व्हाट हैपेंड विथ स्ट्रिंग एज वेल। For your memory, for revision purpose, I am writing a string st is equal to suppose ab and write st star 3. This is the result, ab same thing. So it behaves same like a string because of string is also a sequence. So हम यहाँ देख ले रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, रेप्लिकेट हो गई। अब एक नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब काट देना। तो देखिए सपोज करिए एल एक स्ट्रिंग है, हम नया बना लेते हैं 1 3 0 कुछ भी लिख दीजिए ऐसे ही 9 हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए हमने लिखा एल ब्रैकेट, हमने इंडेक्स के थ्रू हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब कोई भी एलिमेंट हमें एक्सेस करना होता है तो हम ब्रैकेट का यूज करते हैं किसी भी सीक्वेंस में, चाहे वो स्ट्रिंग हो या आपका ये यहाँ पे लिस्ट है, टपल है, कुछ भी हो। हम यही काम डिक्शनरी के साथ भी करेंगे। हालांकि डिक्शनरी एक सीक्वेंस नहीं है, लेकिन ये क्यों वहाँ पे अप्लाई होता है हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, एल हमने लिखा, देखिए स्टार्ट हमने किया 2 से, कॉमा, स्टॉप किया हमने 5 पे, कोलन 1। हम आंसर क्या मिल रहा है हमें, देखिए हमें आंसर मिल रहा है 0 4 7। इसका मतलब क्या है, देखिए 0 जो वैल्यू है एल की उसका इंडेक्स क्या है 2 है। तो ये कहाँ से तक जा रहा है, 2 इंडेक्स वाला, 3 इंडेक्स वाला और 4 इंडेक्स वाला। तो स्टार्ट 2 से हुआ और स्टॉप 5 पे हुआ, मतलब ये 2 से लेके 4 तक की जो कंटेंट है इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग वो दिखाएगा। और ये स्टेप है हमारा, मतलब स्टेप का मतलब हम स्टेप 1 पे जा रहे हैं, मतलब पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर हम कुछ और स्टेप ले लें तो उसी तरीके से डिफाइन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हमने स्टेप को यहाँ पे डिफाइन कर दिया 2, अब इसका आंसर देखिए क्या होता है 0 7, मतलब कि 2 इंडेक्स पर जो वैल्यू है 0 वो दिख गई, और 2 के बाद 3 नहीं आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, बिकॉज ऑफ स्टेप हमारा 2 हो गया है। तो 2 के बाद 4 जो इंडेक्स पे वैल्यू 7 है वो दिख जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों में से कुछ भी देना मैंडेटरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर ऐसे लिख दें कोलन कोलन, मतलब यहाँ पे ये है कि न स्टार्ट दिया हमने, न स्टॉप दिया, न स्टेप दिया, तीनों के तीनों हम स्किप कर गए, तो ये ऑटो डिफाइन कर लेगा। स्टेप की वैल्यू ऑटो डिफाइन 1 हो जाएगी, स्टार्ट की वैल्यू जहाँ से लिस्ट स्टार्ट हो रहा है मतलब 0th इंडेक्स से, और स्टॉप का मतलब जहाँ तक वो जा रहा है, मतलब एक कंप्लीट लिस्ट हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, एल हमने लिखा कोलन कोलन -1। अब देखिए यहाँ पर हमने -1 लिखा तो स्टेप हमारा -1 हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि स्टार्ट और स्टॉप ऑटो डिफाइन होंगे। तो आप जानते हैं कि लिस्ट में भी इंडेक्सिंग पीछे से -1 होती है, डुअल इंडेक्सिंग है, कल हमने डिस्कस किया था। फॉरवर्ड से इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 और पीछे से -1 -2। तो जब हमने स्टेप को -1 डिफाइन कर दिया तो स्टार्ट और स्टॉप ऑटो डिफाइन हो जाएंगे, ताकि एलिमेंट का ट्रावर्सल हो सके। तो ऑफ कोर्स अगर -1 हो गया तो स्टार्ट की वैल्यू भी -1, स्टार्ट की वैल्यू भी हमारी -1 से शुरू हो जाएगी, और स्टॉप की वैल्यू कहाँ तक हो जाएगी, वो लास्ट तक बिगिनिंग तक चला जाएगा, ताकि वो -1 के बाद -2, -2 के बाद -3, -3 के बाद -4, इस तरीके से करता हुआ चला जाए, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। वैसे आप ये याद रखिएगा कि किसी भी लिस्ट को रिवर्स करने के लिए
हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।